A very good morning to all of you. Today I am going to discuss gold number and its calculation. Now, as we know that the lyophilic colloids are more stable due to high solvation and do not easily coagulate by adding electrolytes. So it can be used to protect the lyophobic colloids. Chigmonsky was the first who introduced this word gold number by taking the gold sol as a standard solution. So it is defined as the minimum number of a lyophilic colloid in milligrams that will just prevent the coagulation or precipitation of 10 ml of a gold sol on addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. So इसमें इसको समझने के लिए एक डायग्राम को दिमाग में रखना है कि एक गोल्ड सॉल्ट लिया है वो 10 ml, उसमें 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml ऐड करते हैं तो वो उसको कोगुलेट करा देता है. अब इस गोल्ड सॉल्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है बाय इट्स कोगुलेशन. ओके, अब इसमें लायोफिलिक कोलाइड्स का कम से कम कितना अमाउंट डालें मिलीग्राम में जो उसको कोगुलेशन होने से बचा दे, उसी नंबर को बोलते हैं गोल्ड नंबर. तो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को स्टैंडर्ड माना गया इसलिए इसको गोल्ड नंबर बोलते हैं. इसको जिंगमॉन्डी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. क्यों? ऑब्जेक्ट क्या था गोल्ड नंबर को इंट्रोड्यूस करने का? तो किसी लायोफिलिक कोलाइड्स के प्रोटेक्टिव पावर को मेजर करना है कि कौन सा लायोफिलिक कोलाइड्स ज्यादा इफेक्टिव होगा किसी भी लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया, उसमें 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml उसमें ऐड करेंगे तो वो उसको कोगुलेट करा देगा. तो बिफोर एडिंग 1 ml of 10% sodium chloride, an amount of lyophilic colloid added. So minimum number of lyophilic colloid which is just sufficient to prevent its coagulation. That is known as gold number. ठीक है. Higher the gold number, lower will be the protective power of lyophilic colloids. So किसी गोल्ड नंबर का किसी लायोफिलिक कोलाइड्स का गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर उतना ही कम होगा. सो गोल्ड नंबर का मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी लायोफिलिक कोलाइड को हम यूज कर सकते हैं लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड्स ड्यू टू हाईली solvation, and lyophobic colloids can easily be coagulated by adding electrolytes. Now gold number of some lyophilic colloids are given below. So for starch it has a maximum value 25 to 50, while for gelatin it has the minimum value 0.005 to 0.001. So we can say that the gelatin has the maximum protective power since its gold number is minimum, while the starch have minimum protective power as its gold number is maximum. Now numericals based on gold number. So first example, 50 ml of gold salt requires 0.05 milligram of gelatin for its protection against coagulation. Now calculate gold number of gelatin. ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 50 ml गोल्ड सॉल्ट लिया है, उसको कोगुलेट करने के लिए हमें 0.05 मिलीग्राम जिलेटिन लग रहा है, तो इसका गोल्ड नंबर निकालना है जिलेटिन का. चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट गोल्ड नंबर का. सो एज वी नो by the definition of gold number क्या था? Number of milligrams of lyophilic colloid required for 10 ml gold salt. 10 ml gold salt के लिए जितना जिलेटिन लगेगा वही उसका गोल्ड नंबर होगा. ठीक है, by adding 1 ml of 10% sodium chloride solution. So यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? 50 ml के लिए कितना है? 0.05 milligram. So since 50 ml of gold salt needs 0.05 milligram of gelatin, so 10 ml of gold salt required 0.05 divided by 50 into 10, simply 0.01 milligram. So gold number of gelatin हो गया 0.01. ठीक है, तो जब भी गोल्ड नंबर निकालना है तो पहले हमें उसको बेसिक टर्म डेफिनेशन को देखना होगा. तो गोल्ड नंबर के लिए क्या है कि किसी भी लायोफिलिक कोलाइड्स का मिनिमम नंबर जनरली इन मिलीग्राम्स जो उसकी 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट कर सके बाय एडिंग 1 ml of 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. यहाँ 50 ml के लिए दिया हुआ है तो हमें 10 ml के लिए निकालना है. सो 10 ml के लिए सॉल्व किया तो 0.01 मिलीग्राम. सो ये हो गया गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. The coagulation of 100 ml of a colloidal solution of gold is completely prevented by adding 0.25 gram of starch to it before adding 10 ml of 10% sodium chloride
solution. Now calculate the gold number of stars. इस क्वेश्चन और पीछे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ में आपको ग्राम में दिया हुआ है, but definition of gold number is that the number of liophiलिक colloids in मिलीग्राम. तो पहला काम हमें यहाँ पे कि ये जो ग्राम में इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, so 100 ml of colloid gold salt needs 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च, दैट इज इसको मिलीग्राम में चेंज कर दिया. तो मिली मतलब 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया मिलीग्राम स्टार्च. सो ये 100 ml के लिए है. 100 ml गोल्ड सॉल्यूशन के लिए कितना दिया है? 0.25 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम. ठीक है, क्वेश्चन में तो 0.25 ग्राम दिया है, लेकिन हमें इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें इसका गोल्ड नंबर निकालना है, गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च. गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च निकालने के लिए यहाँ में क्या है? 10 ml के लिए हमें चाहिए. सो 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए जितना स्टार्च लगेगा वही उसका गोल्ड नंबर है. ठीक है, इसलिए नाउ सिंस 100 ml गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड 0.25 ग्राम स्टार्च, तो ग्राम को चेंज कर दिया मिलीग्राम में. 10 ml गोल्ड सॉल्ट कितने आएगा? तो उसके लिए सॉल्व कर लिया तो 25 मिलीग्राम. सो गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज 25. ठीक है, चलिए दूसरा एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ था, 10 ml of 10% sodium chloride solution. देखिए जनरली 10 ml of 10% sodium chloride solution is added to 100 ml solution of gold. तो 10 ml किसके लिए है? 100 ml के लिए है. तो 1 ml of 10% sodium chloride कितने के लिए आएगा? 10 ml solution of gold. ठीक है, सो यहाँ ग्राम दिया था इसलिए पहले इसको मिलीग्राम में चेंज कर लिया, और ये मिलीग्राम कितने में लग रहा है? 100 मिलीग्राम ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन के लिए. हमें कितने का निकालना है? गोल्ड नंबर मतलब 10 ml गोल्ड सॉल्ट. तो यहाँ हम सॉल्व किया 25 मिलीग्राम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. द गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन is 0.01. Calculate the amount of gelatin to be added to 1000 ml of a colloidal solution of gold to prevent its coagulation before adding 1 ml of 10% sodium chloride solution. So यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर दिया है, आपको गोल्ड नंबर दिया हुआ है, अमाउंट पूछ रहा है. ठीक है, तो डिफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर का क्या है कि एज पर द डिफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज गिवन 0.01. इसका मतलब दैट इज 0.01 मिलीग्राम ऑफ जिलेटिन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, पीछे न्यूमेरिकल में गोल्ड नंबर निकाला, तो गोल्ड नंबर के लिए क्या था? 10 ml गोल्ड सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए कितना लायोफिलिक क्लोराइड हमें उसमें ऐड करना होगा इन मिलीग्राम. यहाँ में आपको गोल्ड नंबर दिया हुआ है, तो गोल्ड नंबर जो वैल्यू आएगा, जैसे सपोज किसी का गोल्ड नंबर अगर x है, इससे क्या पता चला है कि x मिलीग्राम ऑफ दैट प्रोटेक्टिव क्लोराइड शुड बी एडेड इन 10 ml गोल्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, सो गोल्ड नंबर दिया है 0.01. इसका मतलब क्या है कि इतना मिलीग्राम 0.01 मिलीग्राम ऑफ जिलेटिन हमें ऐड करना होगा 10 ml गोल्ड सॉल्ट में, इसके प्रिवेंशन को prevent its coagulation by adding 1 ml of 10% sodium chloride solution. Now अब न्यूमेरिकल यहाँ से बन गया 10 ml of gold salt needs 0.01 milligram of gelatin by the definition of gold number. So 1000 ml of gold salt required. Solve किया 0.01 divided by 10 into 1000, that is 1 milligram. So amount of gelatin to be added, it is 1 milligram. ठीक है, तो जब गोल्ड नंबर दिया रहेगा तो जितना गोल्ड नंबर की वैल्यू दिया रहेगा उतना वो मिलीग्राम है 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए. यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिलेटिन टू बी एडेड टू 1000 ml. तो 1000 ml अगर हम गोल्ड सॉल्ट ले तब हमें कितना उसमें जिलेटिन ऐड करना था. ठीक है, तो गोल्ड नंबर देने का मतलब है कि वो वैल्यू मिलीग्राम में आएगा, किसके लिए? फॉर 10 ml के लिए. बाकी जो क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया रहेगा उसके लिए रख के सॉल्व कर लेना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. when 6.0 into 10 to the power -5 gram of a protective colloid was added to 20 ml of a standard gold salt, the precipitation of latter was just prevented on addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution.
नाउ कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक, यहाँ भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या दिया है, ये ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, कितने के लिए, 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट। हमें गोल्ड नंबर निकालना है, तो गोल्ड नंबर का मतलब होता है 10 ml गोल्ड सॉल्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 20 ml गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 6.0 10 to the power minus 5 gram protective colloid, whatever the protective colloid, but ये ग्राम को हमें we have to change it into मिलीग्राम। इसको मिलीग्राम में चेंज कर दिया, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6.0 into 10 to the power minus 2 मिलीग्राम। so 10 ml गोल्ड सॉल्ट रिक्वायर्ड, सॉल्व कर दिया। so 10 गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इक्वल टू 0.03। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6.0 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाई 20 into 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 2 डिवाइड हो गया तो 0.03। सो दिस गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज 0.03। ठीक है, चलिए इस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है। द कैलकुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ 0.03 ग्राम। चलिए यहाँ में 0.03 ग्राम दिया है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करिए। ये कितने के लिए है, 100 ml के लिए है। हमें कितना निकालना है, गोल्ड नंबर, मतलब 10 ml के लिए। तो 100 ml के लिए 0.03 ग्राम, अभी जो जस्ट न्यूमेरिकल किया था पीछे, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10 to the power 3 मिलीग्राम। कितने के लिए, 100। सो दिस डिवाइडेड बाई 100 into 10, सॉल्व किया, ये आ जाएगा इसका गोल्ड नंबर। 5 ml of standard gold salt needs 0.5 milligram of gelatin। तो 0.5 milligram of gelatin कितने के लिए, 5 ml of standard gold salt। so क्या लिखेंगे, since 5 ml gold salt needs 0.5 milligram of gelatin, so 10 ml of gold salt needs 0.5 divided by 5 into 10। ठीक है, ये आ जाएगा उसका 1 milligram, that is gold number of gelatin। Similarly, 100 ml of standard gold salt needs 240 milligram of starch for its protection against coagulation before adding 1 ml of 10% sodium chloride solution। यहाँ में 100 ml के लिए कितना दिया है, 240 milligram। so 100 ml of standard gold salt needs 240 milligram। so 10 ml के लिए सॉल्व कर लीजिए, 240 डिवाइडेड बाई 100 into 10, तो ये मिल जाएगा 24 मिलीग्राम, दैट इज गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च 24। ठीक है, सो ओवरऑल गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि गोल्ड नंबर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि सिंस लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड्स। रीजन, क्योंकि लायो मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब लविंग, मतलब in lyophilic colloids the dispersed phase particles have a strong affinity for the medium। ठीक है, so they are highly solvated, सॉल्वेशन इनमें ज्यादा होता है, they do not easily coagulate by adding any electrolyte, so it can be used to protect lyophobic colloid। ठीक है, तो इसलिए जिग्मॉन्स्की ने गोल्ड नंबर को डिफाइन किया। ठीक है, गोल्ड नंबर को डिफाइन करने का ऑब्जेक्ट वही था कि टू मेजर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, कि कौन सा लायोफिलिक कोलाइड्स ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा, ज्यादा इफिशियंट होगा किसी लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब प्रोटेक्शन किसका था, सो इट इज डिफाइंड एज, द गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम व्हिच इज जस्ट प्रिवेंट द coagulation of 10 ml gold salt by adding 1 ml of 10% sodium chloride solution। ठीक है, सो इस पे डेफिनेशन, इस पे न्यूमेरिकल्स और इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो ओके, थैंक यू।